rectification of errors. This is a chapter whereby you commit maximum mistake. Otherwise, the name of the chapter is to rectify the error and you commit the maximum errors. Sometimes you are not able to get that what error has been there. If you are not getting properly what error is there, how can you rectify it? So let's see the procedure first. I always recommend that firstly, pass the right entry. I write it like tick column. Examiner is not going to check it. राइट तो यहाँ पे आपकी एब्रीविएशन चल सकती है, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए जैसे मर्जी एंट्री लिखिए. देन सेकंड कॉलम आई ऑलवेज से दैट इज रॉन्ग एंट्री, आई पुट इट क्रॉस. हियर बाय you will be passing the rectified entries and hereby you will be making it in a neat and clean way. डेट का कॉलम आमतौर पे रेक्टिफिकेशन में नहीं रहता, so you will be following the format of your journal. वही particulars, ledger folio, debit amount and credit amount, and you are supposed to write the narration as well. Rectified वाले कॉलम की आपने narration भी लिखनी है students, right? Then only you will be able to get the full marks. So I will be revising certain extra questions or extra transactions that I will be writing for your convenience on the board. You will be copying it and then you will be answering me. I'm writing a credit sale, then we will discuss about it. A credit sale of rupees 1700 to Krishan. This Krishan is with R by was posted to Kishan account. It means कि नाम गलत है. Kishan's account. Think over it. What should be the right entry and what error he committed. अब साथ साथ मेरे को टाइप ऑफ एरर भी बताना, वो भी हमारा साथ साथ थ्योरी भी हो जाएगी. कौन सा एरर होगा? बिल्कुल ठीक है, एरर ऑफ कमीशन होगा बिकॉज क्लैरिकल मिस्टेक है, नाम गलत लिखा है. ठीक है, कौन सा? नहीं, वो दैट तो आई विल डिस्कस लेटर. फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ एरर. So in the paper he will be giving you one transaction and he may ask from you like identify the type of error. So this is what error of commission. Error of commission के बारे में I always recommend these are the errors which are being occurred due to the carelessness of the clerical staff. तो ये carelessness ही तो है, नाम ही गलत लिख दिया. पहले आप मेरे को राइट वाली एंट्री बताओ. कृष्ण को सेल करी ना, क्रेडिट सेल है ना, so right entry should be Krishan's account debited. हाँ, कृष्ण's account debited to sale. हमने क्या कर दिया? किशन account debited to sale. डेबिट ही है ना, posted to कुछ नहीं लिखा, मींस उसे डेबिट ही किया होगा. किशन टू सेल, सेल सेल ओके है, सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी, गलत वाली एंट्री में भी क्रेडिट हुई. कृष्ण को डेबिट करना था, करेंगे. किशन गलती से डेबिट हो गया. अकाउंट्स का रूल है, अगर कोई चीज गलत डेबिट हो गई है तो उसे कैंसिल करने के लिए रिवर्स कर दो. सो वी विल बी पासिंग द रेक्टिफाइड एंट्री. कृष्ण's account debited to Kishan's account, right? Kishan's account with rupees 1700. Who will speak narration? Narration के बिना entry is incomplete. Then you will be drawing the double line. Who will speak the narration? Yes. ठीक है जी. I am repeating. Sale to Krishan was wrongly posted to Kishan's account, now rectified, right? So with the narration entry is complete one on one. Now let's see the next. A cash sale to Meena. लिखिए पहले transaction. A cash sale to Meena again rupees 1700 was posted. 1700 was posted to the credit of Meena. To the credit of Meena. Firstly think nobody will speak. पहले सोचो, अपनी कॉपीज में करो, then we will discuss. A cash sale to Meena of rupees 1700 was posted to the credit of Meena. Now प्रभनुर आपने बोलनी है right, मनरीत बोलेगी wrong, then we will make it rectify. बिल्कुल ठीक, मीना का नाम नहीं आता जब हम कैश में सेल करते हैं, राइट? सो एंट्री आनी चाहिए थी कैश टू सेल्स. एग्रीड एवरीवन? एनी डाउट टू एनीवन? मीना को कैश में सेल करी है तो मीना का नाम थोड़ी ना आना.
दिस इज माय राइट एंट्री, कैश टू सेल। मनरीत गलती क्या हुई? उसने बोला क्रेडिट ऑफ सेल्स टू मीना। अच्छा, कैश टू मीना भाई, सेल नहीं लिखा, मीना का नाम लिख दिया है, कैश टू मीना। सो कैश कैश ओके है, बोलो क्या करें फिर? मीना गलती से क्रेडिट हो गई है, डेबिट कर दें मीना टू सेल्स। सेल क्रेडिट हुई नहीं तो अब करो ना। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर? कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर? कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेचर ही चेंज कर दी, इनकम दिखाई नहीं, उसे पर्सनल अकाउंट बना लिया, ठीक है। और इट मींस कि उसे रूल्स ही नहीं पता। जब कैश में सेल करते हैं तो हम कभी भी पर्सन का नाम नहीं लिखते भाई, एरर ऑफ प्रिंसिपल है डायरेक्टली। सो दिस इज योर रेक्टिफाइड एंट्री। नाउ फिल अप द अमाउंट 1700 1700। प्रथम स्पीक द नरेशन। Yes, speak the narration. हाँ जी आइए, हाँ जी बोलो नरेशन। मीना टू सेल्स, दिस इज द ट्रांजेक्शन। हाँ बच्चे नरेशन बोलनी है, ऐसे थोड़ा ना बोलना है। Being goods sold on cash wrongly credited to Meena account now rectified. Simple English बोलनी है। Whatever is in your mind and whatever he is giving in the form of statement, that you have to write with being and now rectified end. ठीक है, being बोलो दोबारा। Being goods sold on cash wrongly credited to Meena's account now rectified. बुक की वर्डिंग बताऊं, बुक में क्या लिखता है? Being cash sale posted to the credit of Meena's account now rectified. So हम लोगों ने थोड़ा सा हेरफेर कर दी वर्डिंग की, अदरवाइज सेंस तो सेम ही है ना, राइट? सो लेट्स सी द थर्ड। Jatin, we are revising this rectification, so you can open your notebook. Read the next transaction. It's your turn. Everyone will solve and we will discuss. पहले जतिन बोलेगा. It's not from book, I am writing. A credit sale of old furniture, a credit sale of old furniture, पुराना एसेट बेचा है भाई, वो भी उधार पे, टू प्रेम फॉर ₹1700, टू प्रेम ₹1700 was credited to sales account, was credited to sales account. सोचिए सभी लोग, राइट और रॉन्ग पास करिए एंड देन मेक इट रेक्टिफाइड. Yes, take 2 minutes and solve it, everyone. हाँ जी, see. A credit sale of old furniture to Prem ₹1700 was credited to sales account. अंकित चलो आपसे स्टार्ट करते हैं. जब कोई पुरानी एसेट बेचते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? और उधार पे बेची है प्रेम को. क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम. अब बस यहां तक मेरे को बताओ, जर्नल एंट्री बताओ. अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम ₹1700. हाँ दोबारा बोलो. प्रेम अकाउंट डेबिटेड. बिल्कुल ठीक है. प्रेम अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर. एग्रीड. प्रेम को डेटर बनाना है एंड फर्नीचर इज गोइंग आउट. ठीक है. रियल अकाउंट लगा. क्रेडिट व्हाट गोस आउट एंड डेबिट द रिसीवर. यहां डेबिट द डेटर, एसेट वाला रूल. ठीक है. सो दिस इज व्हाट प्रेम अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर. गुड. प्रथम गलती क्या हुई? हमने रॉन्ग क्या कर दिया? क्या कर दिया हमने यहां पे? बोलो ना मेरे को. रॉन्ग एंट्री बोलो. was credited to sales account. हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया भाई प्रेम टू सेल्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मींस मैंने फर्नीचर को क्रेडिट ना करके फिर से एरर ऑफ प्रिंसिपल है. हाँ वो तो रेक्टिफाइड है ना, पहले मेरे को बोलने तो दो. प्रेम टू सेल फिर से एरर ऑफ प्रिंसिपल है. ठीक है. कहीं पे एसेट का आउटफ्लो दिखाना था, आपने उसे इनकम मान लिया. एरर ऑफ प्रिंसिपल. इट मींस कि यू आर नोइंग नॉट नोइंग द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी. क्लियर? प्रेम प्रेम ओके है. सेल गलती से क्रेडिट हो गई है.
क्या करें सही करने के लिए? डेबिट, सो सेल्स यहां पे पूरा लिखना है आपको, अकाउंट वर्ड भी पूरा लिखना है, सेल अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर। हाँ जी बोलो सम्यक, क्यों ज्यादा टाइम लगता है? अच्छा ठीक है लिख देना फिर। दिस इज अगेन ऑफ 1700। नरेशन बोलो, being old furniture sold wrongly credited to sales account comma now rectified। done। चलिए आगे चलते हैं। yes again a new thing, a credit sale of machinery to Rohan for rupees 1700 was posted as 7100। पहले तो टाइप ऑफ एरर बताओ, अमाउंट गलत है ना, डिजिट पहले दो डिजिट इंटरचेंज कर दिए, 1700 लिखना था, लिख दिया 7100। हाँ एरर ऑफ कमीशन है, क्लैरिकल मिस्टेक है भाई, ठीक है। जब न्यूमेरल आप गलत लिख देते हैं तो केयरलेसनेस ऑफ माय क्लैरिकल स्टाफ, सीसी से याद करने को बोला हुआ मैंने, क्लैरिकल स्टाफ फ्रॉम सी, आगे बोलो सी फॉर कमीशन एंड केयरलेसनेस इज आल्सो फ्रॉम सी, तो ट्रिपल सी है याद करने का ढंग, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। राइट एंट्री बोलो, पास इन योर बुक। ओके, क्रेडिट में पुरानी मशीन बेची है रोहन टू मशीन, अकाउंट की तो कोई गलती नहीं हुई, अमाउंट की गलती हुई है ना समय, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एंट्री यही लिखी, लेकिन अमाउंट क्या लिख दी 7100। आपको नहीं लगता रोहन ज्यादा अमाउंट से डेबिट हो गया है? कितनी अमाउंट ज्यादा है? 1700 को माइनस करो 7100 में से, दैट विल बी 54। 5400 से रोहन ज्यादा डेबिट है पुलकित, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, एक मिनट, 53 कैसे होगा? 11 है, 11 और 14 है, 17 है, हाँ माइनस तो ठीक कर, 71 माइनस, पुलकित बोलो आप सही। रोहन ज्यादा अमाउंट से डेबिट हो गया है, मशीनरी ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट हो गई है, हिंट दे दिया मैंने, रेक्टिफाइड। हाँ ऊंचा बोलो, बिल्कुल ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रोहन, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट हो गई है तो सही करने के लिए डेबिट करेंगे, ये ज्यादा अमाउंट से डेबिट हो गया है तो इसे सही करने के लिए क्रेडिट करेंगे, रिवर्स करना होता है। When it is being excessively debited or credited, we always make it reverse, right? करो एंट्री कंप्लीट फिर। हाँ, somebody texted something. Let me read. So on my screen, Gaurav, no one is waiting. I am allowing everyone to enter, but Anshul is not there, I think, in the waiting room. So what we were doing? करो जी, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, रोहन्स अकाउंट। सो डिफरेंस है भाई 7100 माइनस 1700, दैट कम्स टू अस 5400। जतिन माइनस और एडिशन, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन ठीक करनी है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स तो ये वाली गलतियां नहीं करेंगे। अगेन नरेशन, बीइंग ओल्ड मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट, रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड, ना लिखो कि 1700 था 71, बस नरेशन में ही लिखो wrong amount entered now rectified। clear? चलिए आगे चलते हैं, let's see। See the next transaction। चलिए जी नेक्स्ट, a check of, yes again a new point, a check for rupees 640 received from Gurdev was dishonored and was posted to the debit of sales return account, and was posted to the debit of
SR सेल रिटर्न अकाउंट, ठीक है, थिंक ओवर इट। वैसे तो कोई लिंक ही नहीं बनता, उसने चेक डिसऑनर हुआ तो उसने ऐसे मान लिया जैसे सामान वापस आया है, सेल्स रिटर्न, ठीक है। सो फर्स्ट यू थिंक ओवर इट, देन टेल मी राइट रॉन्ग एंड देन वी विल पास रेक्टिफाइड। सोचिए, प्रथम सोच लिया आपने, सोचो। हाँ जी, प्रथम बोलो। अच्छा, रेक्टिफाइड नहीं, अच्छा चल रेक्टिफाइड बोल दे हम, फिर रिवर्स चलते, बोलो देखते हैं। सेल्स, सेल्स सेल्स रिटर्न है, इट्स सेल्स रिटर्न। आप रॉन्ग और राइट अपने मन में करते हो और फिर रेक्टिफाइड बनाते हो। ओके चलो आप पहले बोलो। ओके जब चेक मिलता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुरुदेव, जब वो डिसऑनर हो जाता है तो रिवर्स करते हैं, डेटर को अपना डेटर बना लीजिए और बैंक का बैलेंस कम कर दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, मनरीत ने बोला गुरुदेव टू बैंक, दिस शुड बी माय राइट एंट्री, एम आई राइट। बीइंग चेक डिसऑनर हुआ क्या, was posted to the debit of sales return, हमने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न टू बैंक, मतलब यही हुआ। जब डेबिट किया तो इट मींस कि हमने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न टू बैंक। टू बैंक ओके है, तो क्या करें फिर, गुरुदेव को डेबिट करना था, करेंगे, सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट हो गया, उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फिर आप गलत बोल रहे थे ना, सेल्स रिटर्न पूरा लिखना समय, यहाँ पे एब्रीवेशन नहीं है। गुरुदेव अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्लियर। हु विल स्पीक द नरेशन, being a received check dishonored, wrongly debited to sales return account, now rectified, any doubt? ठीक है वैभव, नेक्स्ट आपकी टर्न है, आपने बोलना तीनों। लेट्स सी द नेक्स्ट। हाँ लेट्स सी, an amount of rupees, an amount of rupees 2860 due from Pankaj, रिटर्न ऑफ एज बैड, अब तो फाइनल अकाउंट का चैप्टर किया है, आपको बैड डेट्स का मतलब पता है। रिटर्न ऑफ एज बैड डेट या बैड इन द प्रीवियस ईयर, कॉमा वॉज रिकवर्ड, ये मिल गया हमें, मरा हुआ पैसा हमें मिल गया, वॉज रिकवर्ड एंड क्रेडिटेड, वॉज रिकवर्ड एंड क्रेडिटेड to his personal account. वैभव your turn, करेक्ट एंट्री बननी है, बोलो। बिल्कुल ठीक है, कभी भी पर्सन का नाम नहीं लिखते भाई, उसे इनकम मानते हैं, मरा हुआ पैसा मिलना मींस हमारी इनकम है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, एम राइट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड, राइट। हमने क्या कर दिया, व्हाट वी डिड, हमने कर दिया, बंदे का नाम लिख दिया, कैश टू पंकज। कैसे सही करें, बिल्कुल ठीक है, पंकज गलती से क्या हो गया है, क्रेडिट उसे डेबिट कर दीजिए और इसे इनकम बना लीजिए। अगेन दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। इनकम ना मान के आपने उस बंदे को अपना क्रेडिटर बना दिया। आप पंकज को अगर क्रेडिट कर रहे हो तो आप अपनी लाइबिलिटी बढ़ाई जा रहे हो भाई, ठीक है। अगेन इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट। सो व्हाट विल बी माय रेक्टिफाइड एंट्री, पंकज अकाउंट डेबिटेड टू bad debts recovered. So what was the amount, that same amount you will be writing here, 2860. Again narration, bolo, being okay, due to recovery of bad debts, ठीक है। now rectified, अपनी लैंग्वेज में चेंज कर दो।
हमें मिला क्या था, मरा हुआ पैसा मिला था, हमने गलती से पंकज में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, अब हम लोगों ने उसे रेक्टिफाई किया, डन। चलो आगे चलते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट है? 5 और 6 ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने कर ली। यू आर फेसिंग एनी डाउट यू कैन आस्क, लाइक व्हेन आई आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, तो अगर आपको कुछ पूछना है, लाइक नेचर ऑफ द एरर, नेचर ऑफ द एरर इज क्लियर? हाँ बोलो, विच सेकंड? जो मैंने सीक्वेंस में सेकंड लिखवाई है, रिपीट करते हैं, that is in my book, I am reading. Second, कैश में सामान बेचा था मीना को। आप बताओ, कैश सेल टू मीना, मीना का नाम तो कंफ्यूज करने को बोला। जब हम कैश में सेल करते हैं पर्सन का नाम थोड़ा ना लिखते हैं, सेल ही मानते हैं भाई उसे। कैश टू सेल आना चाहिए था, राइट। हमने क्या कर दिया, हमने मीना को क्रेडिट कर दिया, हमने कर दिया कैश टू मीना। वी आर रॉन्ग ना, क्या करें फिर? आप बताओ क्या करें? कैश कैश ओके बेटे, मीना गलती से क्रेडिट हुई, सेल क्यों करेंगे? मीना गलती से क्रेडिट नहीं हुई, दिस इज रॉन्ग ना। हाँ, मीना टू सेल्स, सेल क्रेडिट करना था करो, मीना गलती से क्रेडिट होगी, इसे डेबिट करके रिवर्स कर दो, खत्म कर दो। मतलब मीना शुड नॉट बी माय क्रेडिटर। मीना को अगर मैं एंट्री में क्रेडिट कर रही हूं, इट मींस कि मैं तो उसे अपनी लायबिलिटी बनाई जा रही हूं, जबकि मेरे को तो दिखानी थी इनकम। अगेन इट वाज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, इनकम की जगह आपने उस बंदे को अपनी क्या बना लिया, लायबिलिटी बना लिया। दो वी सोल्ड द गुड्स टू दैट लेडी ऑन कैश, we are not supposed to write his or her name, but we wrote her name, right? Any other doubt? Any other confusion or doubt? So let's proceed to the next. Yes, अब bills of exchange का चैप्टर भी हम लोगों ने thoroughly किया हुआ है. Now next transaction is relating to that. Let's see कैसे आप understand करते हैं उसे. So it is a discounted BR. Who gets the bill discounted? Who gets the bill discounted? वंशिका, सस्पेंस अकाउंट कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पहले मेरे को ये वाली ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने दो. A discounted BR for rupees 8,000 returned by bank had been, बैंक ही वापस करेगा ना, बैंक से मैंने डिस्काउंट करवाया तो बैंक को लगा कि आपके ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया तो उसने हमें वापस भेज दिया. बाय बैंक had been credited to bank account and debited to BR account. Take 2 minutes, first you think over it and then tell me. And whosoever are sitting like online, they can text me in the chat box. It's your turn to solve it. Right, wrong and rectified. Everyone will try. Yes. सम्यक राइट एंट्री क्या करते थे? ड्रॉअर की बुक्स में है. ट्रीट योरसेल्फ एज अ ड्रॉअर. बोलो गलत. 100 बार बताया हुआ है, जब कभी भी बिल डिसऑनर होता है, एवरी टाइम यू हैव टू डेबिट ड्रॉई. चाहे बैंक बिल आपके पास है, चाहे आपने डिस्काउंट करवाया, चाहे आपने एंडोर्स किया. सो ड्रॉई टू बैंक. फिर जिसके पास बिल है उसे क्रेडिट कर दो. हैड इट बीन एंडोर्स्ड, तो एंडोर्सी यहां पे क्या होता है? क्रेडिट. दिस इज राइट एंट्री. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आता होगा तभी ये रेक्टिफिकेशन होनी. सो जब कभी भी बिल डिस्काउंटेड वो डिसऑनर हो जाता है, बैंक लॉजिक देखना. बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया, बैंक बोलेगा तू तो मेरे से पैसे 3 महीने पहले ले चुका है, जबकि बिल की पेमेंट तो दी नहीं तेरे ड्रॉई ने. तो हम क्या करेंगे? हम ड्रॉई को इन्फॉर्म करेंगे, ड्रॉई को दोबारा से अपना डेटर बना लेंगे, बैंक को अपनी लायबिलिटी बना लेंगे. वी आर लायबल टू बैंक, बट इन रिटर्न वी विल बी टेकिंग दैट मनी फ्रॉम आवर ड्रॉई. ठीक है, इसलिए ड्रॉई को अपना डेटर बनाइए और बैंक को अपनी लायबिलिटी बनाइए विद नोटिंग चार्जेस. नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में नहीं दिए, फाइन. हमने क्या कर दिया? बोलो, हमने क्या किया? हमने बैंक को क्रेडिट ही किया. हाँ, हमने बीआर को डेबिट कर दिया. बैंक ओके है भाई, मतलब यहां तक आपको नॉलेज थी कि बैंक इज सेंडर. ठीक है, हम क्या करें? ड्रॉई को डेबिट कर दीजिए और बीआर को क्रेडिट कर दीजिए. ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू बीआर विद रुपीज 8,000. ठीक है सम्यक? तो देखते हैं किसने भेजा हमें टेक्स्ट.
हाँ इसने रॉन्ग बोल दी थी, ठीक है। रुचिका बिल्कुल ठीक है, ड्रॉई टू बी आर, डन। ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू बी आर, क्या नरेशन लिखेंगे? बीइंग अ डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड wrongly debited to BR account, now rectified, done, clear है जी। bills of, I am repeating the same sentence, bills of exchange आता होगा तभी ये कर पाओगे। चलो जी आगे चलते हैं, come to next, let's see next। फिर से कोई गाने गुनगुना रहा है, प्रथम तो नहीं है, कोई और है ना? आज तो नहीं आप गा रहे? ओके, वैभव गाता है फिर। ₹10,000 paid for electricity bill, this is electricity bill of proprietor's residence, यहां तक तो ड्राइंग बन रहा है, of proprietor's residence was debited to journal expense account, was debited to journal expense account, was debited to general expenses account, think over it। प्रोप्राइटर अगर बिजनेस का पैसा यूज करता है अपने घर के बिजली का बिल पे करने को तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं भाई। हाँ, राइट एंट्री क्या आनी चाहिए? प्रथम राइट एंट्री क्या आनी चाहिए? सो समबडी टेक्स्टेड मी, पहले मैं सॉल्व करूंगी फिर मैं चेक करती हूँ उसने ठीक बोला। व्हाट शुड बी द राइट एंट्री? प्रथम ऊंचा बोलो, आगे टू कैश, डन, बिल्कुल ठीक है। ड्राइंग्स टू कैश, दैट इज माय राइट एंट्री। मैं बार बार बोलती हूँ पहले दो कॉलम एग्जामिनर ने नहीं चेक करने, दैट इज फॉर योर ओन कन्वीनियंस। हमने क्या कर दिया? जनरल एक्सपेंसेस टू कैश, बिल्कुल ठीक। ड्राइंग्स को डेबिट करना था, करेंगे। जर्नल एक्सपेंसेस गलती से आपने उसे बिजनेस का खर्चा मान लिया, दो इट इज नॉट, ठीक है, तो उसे रिवर्स कर दीजिए। सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय राइट रेक्टिफाइड एंट्री? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंसेस। What is the amount? The amount was of ₹10,000, right? Being electricity bill of the proprietor's residence paid, wrongly debited to journal expenses account, now rectified. So let's see who wrote the answer. Yes, drawings to expense, बिल्कुल ठीक है जी। रसिका, अनमोल, बिल्कुल ठीक, गुड। चलिए एक और डिस्कस करते हैं। सैलरी पेड टू वरुण, एन एम्प्लॉय, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी पेड टू वरुण, एन एम्प्लॉय, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब मैनेजर लिख लीजिए। सैलरी ₹67,000 पेड टू वरुण, अ मैनेजर, was debited to his personal account, debited to his कल सस्पेंस अकाउंट करेंगे, so nobody will miss the class। कल भी सेम टाइम पे क्लास होगी because I have to attend 2 days webinar। This is salary ₹67,000 paid to Varun, a manager, was debited to his personal account। Who will tell the right entry? चलो बोलो पुलकित। एक मिनट, हाँ दोबारा, बिल्कुल ठीक। सैलरी टू कैश, कभी बंदे का नाम थोड़ी ना आता है, खर्चे का नाम आता है भाई। अगर मैं वरुण को डेबिट कर दूंगी फिर से एरर ऑफ प्रिंसिपल है, मैं तो उसे डेटर बनाई जा रही हूं जबकि मैंने एक्सपेंस शो करना है। सैलरी टू कैश इज माय राइट एंट्री, क्लियर। हमने क्या कर दिया? वरुण टू कैश। इसी तरह से रेंट भी आता है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड को डेबिट करना, ऐसी भी आती है ट्रांजेक्शन टू कैश, बिल्कुल एरर ऑफ प्रिंसिपल है। नॉमिनल अकाउंट ना बना के उसे पर्सनल अकाउंट ट्रीट कर लिया, क्या करें फिर? सैलरी टू वरुण, ठीक है। Being salary paid to a manager, wrongly debited to his personal account, now rectified। So this is enough for today। बाकी कल सस्पेंस अकाउंट के साथ कंटिन्यू करेंगे। सैलरी टू वरुण बिल्कुल ठीक है। वंशिका गुड, रसिका गुड। So see you tomorrow at the same time।